बात पर बहस कर रहे हैं तो उसका मतलब मसला कोई सामाजिक है। पर्सनल बात पे फारूक को उदास होते देखना या बिना ह्यूमर के देखना, मेरे ख्याल से अगर सीरियस सीन हो और कैमरा चालू हो जाए तो सीरियस हो सकते थे, होते भी थे, उसके बिना नहीं पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि फारूक कॉलेज के जमाने से जानते थे। जेवियर में था, हम खालसा में थे और हम कम्पिटिटर थे, और जितनी ज्यादा मदद थिएटर में उन्होंने अपनी कम्पिटिटर्स की वो सबको ट्रॉफी ऑर्गेनाइज किया करते थे, उतनी ज्यादा मेरे ख्याल से कोई नहीं कर सकता। फिर हमने साथ साथ फिल्म की और उसका काफी फारूक was an easy person to work with, but very difficult person to say yes from him, to take a yes from him. In fact, we could not do much of the television together. जब मैं बहुत सारा टेलीविजन कर रहा था, क्योंकि फारूक कंप्लीट स्क्रिप्ट मांगते थे, टेलीविजन में कहाँ से लाता था, चैनल देता ही नहीं था, और फारूक हंसते थे, तुम्हारे पास है नहीं स्क्रिप्ट तो है नहीं, तो इसलिए हम टेलीविजन के बारे में बातें करते रहे, फिल्म साथ साथ हमने जरूर की और उसके सीक्वल के बारे में बात करते रहे, स्क्रिप्ट की तैयार कर रहे थे। लेकिन एक बार यस हो जाए फारूक से, फिर कोई सवाल नहीं आता, फिर डायरेक्टर डिलाइट। फिर उसके बाद मतलब कि ऐसे सीन शूट किया फारूक को देखते था, जबकि चश्मे में दूर रिलीज हो चुकी थी, नोन फेसेस है दोनों, कि जल्दी से बस में चढ़ जाओ, टिकट लेके बैठ जाओ, पीछे से शूट करते हैं। ना हमारे पास पैसे होते थे, ना हमारे को जानता भी था, तो ऐसे भी सीन शूट किए। उसे कभी किसी बात पे ना ही सवाल किया, once he agrees, in principle he agrees. He never compromised with his principle, either in films or in personal life. मैं उसे कहा करता था, तुम्हारी परफॉर्मेंस में जेन्युइनिटी आती है, वो जेन्युइनिटी इसलिए आती है, तुम जेन्युइनिटी तुम्हारी पर्सनैलिटी में है, क्योंकि जो अदर साइड ऑफ हिज पर्सनैलिटी दैट इज सोशल वर्क। इतना सोशल वर्क बिना शोर मचाए, बिना किसी को बताए, मालूम नहीं क्या होगा, इतना किसी को नहीं। Every one day of the month he used to go to UP or Madhya Pradesh or Bihar for this polio Sunday on behalf of UNICEF. He never broke that commitment with UNICEF. It's a school in Chhattisgarh where there is education somewhere children. वो इसका एक अलग पहलू था, उस पहलू को उसने कभी फिल्मों में नहीं आने दिया, और इतना चुपचाप किया, अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि इतना ज्यादा काम मेरे ख्याल से अगर उनकी फिल्मों का काम देखा जाए और उनकी सोशल वर्क का काम देखा जाए, तो कहीं कोई कौन सा काम है कौन सा ज्यादा है, ये फर्क निकालना मुश्किल था। यही जेन्युइनिटी थी। जो आदमी जैसे बोलता था वही जीता था। बड़ा मुश्किल काम होता है, जो बोलना, जो बातें करना, और वैसे ही जीता। I can't believe he's not here, because for me he's a person just so full of life that I can't imagine him not having him in my life. We actually produced Chashme Badur, and I met Farooq Saab when I was around 4.5, 5 years old. He's such a wonderful, generous person and very aware of everybody in the room, even if they were just a little person. I was actually at the, I think one of the Silver Jubilee celebrations, and all the stars were there, everyone was there, and I was the only little person awake after hours, and totally being ignored. And I remember him coming up to me with a piece of cake which they had cut and sharing it with me, and from that moment onwards I was just in awe of this person. And then I had the good fortune of knowing him through some of his films. Sai Branchvi was a part of our lives. My mother worked with her on many of her films, and after that I got to spend some time with him during the shooting of Katha. I was still just a child at the time, and they were shooting in Pune, and very often after the shoot they would come over
And unlike a film star, he always had time for even the little children around, and so he was always there with his jokes, his laughter, his playfulness. And then many years later, I had the good fortune of directing him in Sasbo Sensex. He's always been a presence in our lives, and the honor of having the chance to direct him was amazing. He would also make a lot of fun of me. He'd always make fun of me for being very anglicized, and he was very fond of us, and very generous, very dedicated to what he did, and it was very humbling to be working with him. He was just such a tremendous talent. And the one thing about him, which everybody knows, I'm sure, because his love for food, but then his generosity. One day on set, I mentioned to everyone how from his house he brings the most wonderful biryani, sends us every Eid to our house, and he said, somebody on our set said, that's not fair, and we should have some. And he actually organized for the entire unit. He didn't know moderation. Nothing would come in little bit. It would come like by the car full, like whether it was mithai or khana or whatever it was. It was for everyone, and he bonded with everyone all the time. And we were in the process with Mr. Sanjay Puran Singh just now to put a film together with him. And he was, if you worked with him, you'd realize how much energy and how much enthusiasm he had. You always felt that you were maybe running short, but when he had an idea and he wanted to do something, just so full of life and so encouraging and so warm. It just made working with him every second spectacular. He's a spectacular person, the most perfect gentleman. A wonderful father figure, brilliant, brilliant soul, brilliant, brilliant human being, and we will all miss him tremendously, tremendously. अच्छे तजुर्बे रहे और कुछ तजुर्बे ऐसे भी रहे जो बहुत अच्छे नहीं थे। और यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ तजुर्बे मेरे अच्छे क्यों नहीं रहे, बिकॉज फारूक साहब के साथ में काम करके मुझे पता चला कि इंसान इतना भी अच्छा हो सकता है। कि मैं पहली फिल्म कर रहा था लाहौर, मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी फारूक साहब से, तो उस वक्त मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं कोई फिल्म करूँगा या इस इंडस्ट्री में आऊँगा। मैं एयरपोर्ट पे गुजर रहा था और एक टर्मिनल पर मीडिया बाइट दे रहे थे फारूक साहब। उनकी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी देख के मैं वहाँ पर रुक गया और मुझे लगा कि अगर शायद मैंने कभी ज़िंदगी में फिल्म बनाई तो मैं इनके साथ में ज़रूर काम करना चाहूँगा। कुछ वक्त गुजरा और चीज़ें ऐसी हुई कि मैं बॉम्बे आ गया और यहाँ पर आके मैं अपनी फिल्म लाहौर पर काम करना मैंने शुरू कर दिया। उस दौरान फारूक साहब फिल्में नहीं कर रहे थे, बहुत कम काम कर रहे थे। इनफैक्ट शायद कुछ 14-1 साल से उन्होंने कोई फिल्म नहीं की थी, तो बड़े रिलेक्टेंट रहे वो, कुछ भी ऑफर्स नहीं ले रहे थे और शायद वो ऐसा बोलते थे कि फिल्म बहुत अच्छी नहीं आ रही, नया काम कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो मैंने फारूक साहब को ट्रेस करने का काम शुरू किया। तकरीबन 9 महीने तक मैं उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता रहा। मेरी फ़ोन पर बात होती थी और फारूक साहब कभी नरेशन नहीं लेते, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो बात आगे नहीं बढ़ पाती थी। दूसरी तरफ मेरे प्रोड्यूसर्स थे, वो प्रेशर डाल रहे थे कि भैया आप शूटिंग जल्दी स्टार्ट करिए। तो मैंने फारूक साहब को एक मैसेज किया कि सर मैं अब शूट के लिए निकलने वाला हूँ, अगर आप मुझे सिर्फ 5 मिनट फ़ोन पर सुन लें कि मैं क्या करना चाहता हूँ, उसके बाद में फिर आप स्क्रिप्ट पढ़ के डिसाइड करिएगा। तो फारूक साहब कहीं ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने कहा ठीक है आप बताइए। तो मैंने फारूक साहब को थोड़ा सा स्क्रिप्ट के बारे में बताया और फारूक साहब ने कहा कि आपका आइडिया ठीक लग रहा है, आप मुझे स्क्रिप्ट दे दीजिए और उसके बाद में फिर आगे देखते हैं। तो इस उम्मीद पर मैं पूरी यूनिट के साथ में दिल्ली चला गया कि फारूक साहब तो हाँ बोल देंगे। हम लोग तकरीबन 1 महीना तक दिल्ली में शूट करते रहे और तब तक मैंने अपने प्रोड्यूसर्स को ये नहीं बताया कि मैंने फारूक साहब एक्चुअली अभी उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ नहीं बोली है और वो अभी भी स्क्रिप्ट पढ़ने वाले हैं, उन्होंने पढ़ी नहीं है। तो और मैंने उनको क्योंकि ये भी नहीं बताया था कि ये रोल एक्चुअली कौन करने वाले हैं, बिकॉज मेरे प्रोड्यूसर्स जो थे वो दिल्ली के हरियाणा के लोग थे और फिल्म क्योंकि किक बॉक्सिंग के ऊपर थी और रोल किक बॉक्सिंग कोच का था, तो जो नॉर्थ के लोग सोचते हैं कि कोई बॉडी बिल्डर, कोई हट्टा कट्टा आदमी जो है वो इस रोल के लिए होगा। तो मुझे मालूम था कि जब मैं उनको ये बताऊंगा तो जो रिएक्शंस होंगे, लेकिन क्योंकि 1 महीने की फिल्म शूट हो चुकी थी और फिर एक दिन अचानक फारूक साहब का फ़ोन आया कि चलिए मैंने आपकी स्क्रिप्ट पढ़ ली है,
अब मैं तैयार हूँ फिल्म करने के लिए और बताइए कैसे। तो मैंने कहा सर मैं तो ऑलरेडी शूटिंग स्टार्ट कर चुका हूँ, बस आपके आने का इंतजार है। फारूक साहब ने कहा कि आपने इस रोल के लिए किसी को डिसाइड नहीं किया अभी तक। मैंने कहा सर अभी तक तो मैं सिर्फ आप ही को लेकर चल रहा हूँ और तो मैंने कुछ सोचा नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक काम करिए, आप एक दिन के लिए बॉम्बे आइए, बात करते हैं और फिर देखते हैं। तो शूट के बीच में से संडे हम लोग दिल्ली में शूट नहीं करते थे, तो मैं फारूक साहब के पास में उनको मिलने के लिए आया। तो मैंने बताया कि सर इस तरह से मैंने शूटिंग कर दी है और मैंने अभी तक अपने प्रोड्यूसर्स को ये भी बताया है कि आपने अभी तक हाँ नहीं बोली है। फारूक साहब थोड़ी देर सोचने लगे और बोलते हैं कि आप मतलब और अगर मैं नहीं करता ये तो क्या होगा। तो मैंने कहा सर मैंने ये तो सोचा ही नहीं था। बोलते हैं आपने मतलब मेरे लिए ऑप्शन ही नहीं छोड़ी। फिर उन्होंने बात हुई पैसे की, तो सिंस क्योंकि मैंने फिल्म स्टार्ट की तो बहुत टाइट बजट पे बन रही थी, तो मैंने कहा सर मुझे नहीं मालूम कि आप क्या रेम्युनरेशन लेते हैं, लेकिन ज़्यादा ऑफर करने के लिए मेरे पास में कुछ है नहीं। तो फारूक साहब ने कहा आप एक काम करिए, आप जो भी है, उन्होंने एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया कि इसके नाम से चेक बनवा के ये डलवा दीजिए। मैं ये फिल्म आपके लिए करता हूँ, लेकिन आप जो भी है फिगर मुझे मत बताइए, लेकिन आप जो मुझे देना डिसाइड कर चुके थे वो यहाँ दे दीजिएगा। उसमें ऐसी कोई कटौती मत करिए कि आप मुझे कुछ और बताने वाले थे और वहाँ कुछ और कर दें। तो फारूक साहब ने एक भी पैसा लाहौर के लिए नहीं दिया। और जब उसके बाद में हम फारूक साहब ने यूनिट ज्वाइन की, तो अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि जो मेरे प्रोड्यूसर्स थे और इनफैक्ट काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स थे वहाँ पर, तो और सारे हरियाणवी लोग थे और हम स्टेडियम में शूट कर रहे थे। तो फारूक साहब आने वाले थे, तो शाम को मिलने के लिए नेक्स्ट डे से शूटिंग थी। तो अब बात ये थी कि अब जो हरियाणवी मेरे प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं वो ये देखने वाले थे कि किक बॉक्सिंग कोच कौन करने वाला है। तो उनको वहाँ पर आए हुए और भी रेसलर्स और इस तरह के सारे लोग जो हरियाणा के थे वो सारे इकट्ठे थे, बिकॉज हरियाणा से आके कोई दूसरा आदमी अश्विनी जी के बाद में कोई फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा था। तो ये भी अपने आप एक बड़ी बात थी। तो वहाँ पर बैठे हुए रेसलर्स थे, वो थे कि भाई कोई कोच करने वाला है। तो उनको लगा कि कोई मस्कुलर, कोई हैवीवेट बॉक्सर टाइप का कोई आदमी आएगा। तो फारूक साहब आए, उन्होंने सबसे मुलाकात की, प्रोड्यूसर से मिले, बातचीत की। तो थोड़ी देर के लिए सारे शॉक में चले गए, सब शॉक थे कि ये क्या हुआ। बाद में अगले दिन हमने शूटिंग स्टार्ट की। फिर कुछ दिनों बाद मेरे जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने एक दिन मुझसे बात की कि देखिए आपने जो कर रहे हैं वो तो ठीक ही कर रहे होंगे, लेकिन आप ये बताइए कि फारूक साहब से एक बॉक्सिंग के कोच की भूमिका आप कैसे करवाएंगे। तो मैंने कहा सर बिकॉज मुझे मालूम है, मैंने फारूक साहब का वो जिस तरह के मतलब मुझे क्या तो सभी को पता है कि फारूक साहब किसी भी चीज़ को करते हैं तो किस तरह की क्रेडिबिलिटी लेके आते हैं और कितने ब्रिलियंट को एक्टर है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ये बात। तो बहरहाल प्रोड्यूसर इस बात से थोड़े से पूरी शूटिंग के दौरान नाराज़ रहे कि भाई आपने एक डिसीजन जो है वो गलत ले लिया। लेकिन जब बाद में उन्होंने रशेस देखे तो सब फारूक साहब को मिलने के लिए गए कि जी हम एक्चुअली ऐसा सोचते थे कि कोई और आदमी होना चाहिए था जो बॉडी बिल्डर होता इस रोल के लिए, लेकिन आपने जो किया हम सोच भी नहीं सकते। मतलब ये इतना मुश्किल काम है और आपने इतने सहूलियत से, इतनी सादगी से आपने जिस तरह से इसको किया, ये कमाल की बात है। और बहुत सारी चीज़ें जो उस दौरान होती रही फारूक साहब से के साथ में, हर दिन जब भी आपका गुजरता है तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। हर दिन आपका कुछ नए एक्सपीरियंस होते हैं, आपको आप एनरिच होते हैं उनसे। फारूक साहब को आपकी यूनिट के हर एक मेंबर का नाम मालूम होता था। ये मुझे अपनी फिल्म के दौरान पता चला, जो मुझे नहीं मालूम था, बिकॉज मैं बहुत बड़ी यूनिट के साथ में भी कई बार शूट करता था। तो एक दिन फारूक साहब ने किसी शख्स का नाम लिया और कहा कि भाई वो कैसे हैं। तो मैंने सबसे पहले अपने आसपास वालों में और सबको पूछने की कोशिश की कि ये कौन है। तो मुझे लगा कि कुछ शायद कंफ्यूजन हुआ है सर को, वो किसी और फिल्म के दौरान या किसी और यूनिट से किसी के नाम को कंफ्यूज कर रहे हैं। बाद में मुझे पता चला कि मेरे सेट के ऊपर एक दिन पहले एक लाइटमैन था जिसकी तबीयत ख़राब थी। तो फारूक साहब ने उसको कहा कि भाई आप जाइए, उसको कुछ पैसे वैसे दे के भेज दिया कि आप जाइए आराम करिए। और उन्हें लगा कि शायद वो आज आ नहीं गया हो। तो एज अ कैप्टन ऑफ द शिप वहाँ उस यूनिट में रहते हुए भी मुझे ये नहीं पता हुआ था कई बार कि मेरे यूनिट के लाइटमैन का या स्पॉट्स के नाम क्या है, लेकिन फारूक साहब को हर एक आदमी का नाम पता होता था। न सिर्फ बातें करते थे, पूछते थे उनसे। और मैंने मतलब जब हरियाणा में दिल्ली में बैठ के जब इस इंडस्ट्री के बारे में सोचा था, तो मुझे जो कहानियाँ मैगजीन्स और आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, उन्हीं से मैंने इस इंडस्ट्री को, उन्हीं नज़रों से इस इंडस्ट्री को देखा था। तो जब मैं यहाँ आया, मेरा बॉम्बे के शेड्यूल का पहला दिन था, तो हम लोग सुबह 9 बजे का टाइम था, हम लोग 9 बजे बाहर खड़े हुए थे, बिकॉज अंदर कुछ तैयारियाँ चल रही थी, आर्ट का कुछ काम चल रहा था। और
फारूक साहब को जो टाइम दिया था, फारूक साहब उस टाइम से पहुंच गए। तो फारूक साहब एक सामने एक ऑटो आके रुकी और उस ऑटो से फारूक साहब उतर के आए। तो ये मेरा पहला तजुर्बा था कि इंसान इतनी सादगी से भी यहाँ रह सकता है, बिकॉज ये शोबिस के साथ में मान लिया गया है कि आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, आप इन चीज़ों को दिखाते हैं। तो उनकी सादगी देख के हम कई बार ये आपस में जब बातें करते थे तो ये लगता था कि इतनी सादगी से भी कहा जा सकता है, मतलब ज़िंदगी जीने का ये भी एक तरीका है जो दरअसल लोग भूलते जा रहे हैं। और एक और किस्सा मुझे याद आता है, मैंने फारूक साहब को जिक्र किया था कि मैं कुछ पोर्शन के लिए लद्दाख जाना चाहता हूँ। फारूक साहब काफ़ी वरीड थे ये लेके कि वहाँ हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन लेवल्स लो हैं, तो आप इतने सारे मतलब लोग जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करिएगा, आप सुबह शाम फ़ोन करके बताते रहिएगा कि सब ठीक ठाक है और सब कुछ ठीक से चल रहा है, आप लोगों की तबीयत ठीक है। तो मुझे लगा कि सिर्फ फारूक साहब कंसर्न है इसलिए बोल रहे हैं, और इससे आगे क्योंकि शूटिंग के दौरान इतनी चीज़ें होती हैं कि आप कई बार बातें भूल जाते हैं। सुबह उठ के अपने एक्टर्स को लेके निकलना और फिर लोकेशन पे जाके शूट करना ही अपने आप में इतनी बड़ी महाभारत होती है कि आपको बाकी चीज़ें याद नहीं रहती। लेकिन सुबह 7 बजे फारूक साहब का फ़ोन आ जाता था हर रोज़, और शाम को 8 बजे कि आप वापस आ गए। वो हर एक एक्टर का, टेक्नीशियंस का नाम लेके पूछते थे कि उनकी तबीयत कैसी है, उनका किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और ये बात मुझे अभी तक कोई नहीं मिला। इसलिए अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे अच्छे और बुरे तजुर्बे हुए, तो अच्छे तजुर्बों में ये कि मुझे ऐसा लगा कि शायद सभी फारूक साहब जैसे होते हैं। दूसरी फिल्म करते हुए मुझे पता चला कि नहीं, वो एक ही थे, बिरला ऐसे बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो everybody says he was difficult to say yes to. He never said no to me. In fact, he started my career. I'd come out of the Film Institute, and my good friend Alok Nath, getting his Twitter jokes now, came to me and said that let's make a movie, and I've got 3 lakh rupees. So Chashme Batur had become a hit, and we spoke to some distributors and all that. They said, Farooq Sheikh, then maybe you would be interested. So we went to Farooq Saab and said that we want to make a movie, and we got 3 lakhs, and he said, usse kya hota hai? So I said, I'm from FTI, I'm a gold medalist, usse kya hota hai? I want a Filmfare Award for this film allocation. So I said, please come and see the film. He said, I'm sure you know cinema, I've heard about you, etc. When is the shooting? So I said, December, January, Delhi. He said, I'm doing it. We went running to Nadira Babbar and said that Farooq Saab said yes, and she wrote the film. Then we wrote it in about a month and a half. Later on, Farooq Saab said that because of Delhi and winter and food, good food, you know, that's why I said yes to it. And it was, we would shoot round the clock because we do shoot whole day, and रात को गाना रखते थे, 4 घंटे सोते थे. Satish Kaushik would write some more scenes of himself as a servant, तो उसका रोल बढ़ता गया. फारूक साहब said, ये जो तू लिख रहा है, यही सब कटने वाला editing. And all that got cut. The movie did reasonably well, and I got a second offer for another comedy, which was Picha Karo, which was I discovered a side of Farooq. I think I'll take credit of that. You know, he's the national award winner and Daman and all that. I discovered a totally zany, mad side of Farooq in Picha Karo with Ravi Baswani, Satish, who was as crazy as him. We shot this in Hyderabad. Again, the same thing. I went and told him, sir, ये producer है, ऐसा है, कर रहा हूँ, I'm doing. Then we wrote the film. And again he said, winter Hyderabad, fantastic. I'll tell you where to eat, what kind of food. But शाम को 1 घंटा सैर करेंगे साथ में. I was slim those days, but used to make me walk around. And strangely, the movie didn't do that well, but a lot of people who've seen it find it very funny. But in the middle of that, I got a telegram from Lintas which said that your thing is approved. So he said, "ये क्या है?" I said, मैंने कुछ pilot shoot किया था, वो TV करवाने में से, 2 पिक्चरें direct करूँगा, पीछा करो के बाद, मैं TV थोड़ा करूँगा. He sat down with me and asked me, है क्या ये TV में क्या तुमने किया? So I explained to him. He said, "Listen, boss, उनका साथ used to me. ये तुम अगर इसमें अपनी जान लगा दो, इसकी reach बहुत बड़ी है. तुम समझ नहीं रहे हो, ये बहुत बड़ा होने वाला है." That time we used to look down on Doordarshan. Mostly black and white होता था. That was Karamchand. So when I came to Bombay, I said yes to Karamchand.
And I went and shot it, and then it changed my life after that. Why I'm feeling sad is that at that time he was still an intellectual. वो किताब पढ़ते थे और वो used to comment on राजीव गांधी ने क्यों बोला, दुष्यंत सिंह ने क्यों बोला, which I was not interested in. And we kept really in touch with each other. Sadly, in December I got a good TV project, and I told the producers के जैसे कि बहुत फारूक ऐसा हाँ बोलेगा, कहानी बोलेगा, he doesn't say yes easily, full script all that, I say yes all that. So again we went to his house, and I just met him, and I'm feeling really bad that those 2 hours we sat, we spoke about old times, we spent a great time talking, and he said, Pankaj साहब आप तो educated हो गए, आप तो आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं और सेल्फी जीन्स की बात कर रहे हैं, माया एग्जिस्टेंशियल की बात कर रहे हैं, तो सब नहीं होता था ऐसे फारूक साहब बहुत मजा आएगा बात करेंगे खूब शूटिंग करेंगे पूरी स्क्रिप्ट चाहिए. So the producer looked at me and said, we told you. We got up and we went out, we called you back. So March में I'm on. And I feel very sad, and the man is gone, everything. Those discussions I was looking forward to about how much more I know today about that. Talented directors. I'm थोड़ा बौखला गए थे. What am I going to say about a gentleman who is as loved, as revered, and spoken about fondly as Farooq sir? So I decided I won't say anything, except for possibly share a couple of things that happened with me and Geeta. Geeta's my wife. So the funny thing is that between Farooq Sahib and me, I think there was in excess of 30 years of difference in age, and I have never actually had a friend who would be at that age. I mean, I had people who I know who are 60 plus, and my parents, close to my parents' age, and I respect them, I'm very fond of them, but I wouldn't accord them the relationship of a friendship. And funnily enough, with Farooq Sahib, I think that's what ultimately it became. His text messages, which would be very concise, would be Adab Avinash Sahab, chai, question mark, which basically meant Tashrif le aiye and we shall shoot the breeze for an hour and a half. Talk about everything, talk about nothing. But it just basically meant drop everything and come. And I'll be very sad that those are actually finished. और सिलसिले में इंडिया हैबिटेट सेंटर में पहली बार उनसे मुलाकात हुई. दरवाज़ा खोला उन्होंने अपने सफ़ेद कुर्ते पजामे में, तो उनकी एक शख्सियत तो थी, आप पहले उनका ऑरा जो है वो आप असर करने लगता है. और बस जिस तहजीब से उन्होंने मुझे बुलाया अंदर और बिठाया, मैं तो फिल्मी दुनिया से बिल्कुल ही नहीं जुड़ा हुआ, तो अब शायद तहजीब को भी तहजीब आ जाए, इतना वो तहजीब से पेश आते हैं. और उन्होंने बिठाया, चाय मंगाई, बिस्किट मंगाया, और वहाँ से जो बातचीत शुरू हुई, उनसे एक चीज़ में मैं बड़ा कनेक्ट करता था, SMS से वो बहुत बात करते, और मैं भी बहुत कंफर्टेबल होता था कि मुझे फ़ोन से नहीं SMS से ही बात करें. तो ये मैं एक पहला कनेक्शन उनसे हुआ. ये सिलसिला जो शुरू हुआ, उसके बाद फिल्म खत्म हो गई, डॉक्यूमेंट्री वॉज ओवर. उसके बाद फिर क्लब 60 के टाइम में ही मैं उनसे मिला. एक सीरियल कर रहा था मैं, हम तो वेशन की, उसके लिए वो सूत्रधार थे. तो जब वो कर रहे थे, एक बार हम उनको साथ छोड़ने जा रहे थे घर साथ में, तो मैंने वो क्लब 60 की स्टोरी उनसे शेयर की. उन्होंने कहा ठीक है, आप स्क्रिप्ट पूरी कर लीजिए, क्योंकि इसमें लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो स्क्रिप्ट फिर मैंने उनको दी थी, बाद में वो एग्री भी कर गया और हमारा सिलसिला शुरू हुआ. तो जो दूसरा कनेक्शन उनके साथ हुआ वो था खाने पीने का, और वो भी फूडी थे और मैं भी देख के भी लगता. तो पहला कनेक्शन जो हुआ खाने पीने के मामले में, वो हम वर्ली में शूटिंग कर रहे थे क्लब 60 में, जो उनका घर बना हुआ है. और पहले दिन जो लंच ब्रेक हुआ, तो हमने उनसे पूछा, जो प्रोडक्शन हो रहा था उसने पूछा, सर क्या लेंगे, कुछ पूछिए. तो मैंने पूछा सर क्या लेंगे, बोले मैं सैंडविच वैसे ही कुछ ले लूँगा, चाय, लंच कोई हेवी लंच नहीं लूँगा. तो मैं सोचा एक्टर लोग हैं तो सैंडविच, कोई ब्राउन ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड, ऐसे ही कोई सैंडविच खाएंगे. तो मैंने कहा सर ब्राउन ब्रेड और होल व्हीट ब्रेड का कुछ मंगाऊँ होगा सर. बोले संजय साहब ऐसी कोई बुरी आदतें मुझे नहीं है, बिल्कुल आप बटर लगा के लाइए,
सफेद थे और चाय में डुबा डुबा के खाया। फिर उसके बाद जो कनेक्शन हमारा उनका बैठा, फिर तो हम उनका फ़ोन आता था, फिल्म बन गई, एडिट में थी, शूटिंग सब कुछ खत्म हो गया, बट हम उस कनेक्शन से जुड़े रहे। स्वीट टूथ और फूडी, ये दोनों चीज़ हमारा बहुत कॉमन था। और हम जब भी उनके यहाँ चाय पे जाते थे तो ये मेरी ये लालच होती थी कि मिठाइयाँ भी साथ में आएगी, बिस्किट भी आएगा, नमकीन भी आएगा, तो चाय से ज़्यादा हम लोग खाने पे ही जोर रहता था। दोस्तों, ये एक रस्म बन गई है कि जब कोई मर जाता है, कोई साथी साथ छोड़ देता है, तो हम उसकी सिर्फ अच्छाइयाँ बयान करते हैं और बुराइयाँ जो हैं उनको दबा जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनके ऊपर अगर बोलना हो तो बहुत देर तक ये सोचना पड़ता है कि इनमें कोई अच्छाई थी तो वो कहाँ थी। अच्छाइयाँ ढूंढना पड़ती। फारूक का मसला बिल्कुल उल्टा है। 15 दिन से दिन और रात फारूक का जिक्र कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत से आता रहा है और अभी भी इतनी देर से हो रहा है। और मैं यही सोच रहा था कि कोई तो होगा जो इसकी किसी बुराई की तरफ तवज्जो दिलाए, उंगली उठाए कि भाई इस आदमी में ये बुराई थी। क्योंकि बुराई और अच्छाई जब तक साथ में न हो तो इंसान मुकम्मल नहीं होता। लेकिन मुझे अफसोस है कि फारूक में कोई बुराई मुझे नजर नहीं है। हाँ, कुछ कमजोरियां उनमें जरूर थी और कुछ ऐसी कमजोरियां थी जो जानलेवा साबित हुई। मिसाल के तौर पर ये कि वो एलोपैथी में यकीन नहीं करते थे, अपनी बीमारियों को इग्नोर करते थे और नीम हकीम जैसा कि हमेशा होता है, खतरे जान होता है, उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनका अगर वक्त पे इलाज हो जाता तो आज हम इस शोक सभा में नहीं बैठे होते। लेकिन इसे बुराई नहीं कहा जा सकता, इसे कमजोरी कहा जा सकता है। ऐसा कि अशोक ने कहा, मेरा बड़ा लंबा रिश्ता फारूक के साथ, बरस है, मतलब अभी कुछ दिन पहले मैंने एक छोटा सा आर्टिकल, जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन यहाँ का एक उर्दू का बहुत मशहूर पेपर है इनकलाब, उसमें लिखा था